Then what is the formula for deformation, axial deformation? For bar number 2, weight number 1 is not the self weight, it's an external load, right? तो दोनों का गामा सेम है और EV सेम है, राइट? उसके बाद हमें एरिया लेंगे, किसका एरिया लेंगे? विल टेक द एरिया ऑफ द फर्स्ट बार, क्योंकि ये वेट ऑफ फर्स्ट बार है, इनटू लेंथ ऑफ फर्स्ट, 2a इंटू 0.5e, तो ये क्या आ जा रहा है? देखो, इट इज कमिंग AE, so write down here what? AE. Welcome friends, welcome to this formula memory test. Many students have told me that they are facing difficulties in remembering the formulas of strength of materials. So I have come up with this formula memory test concept where we will be remembering the formulas through questions. So बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला कि दे आर फेसिंग डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग द फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसको थ्रू क्वेश्चंस, ओके, सॉल्व करें और फॉर्मूला को रिवाइज करें. यस, सो आई हैव स्पेशली डिजाइंड दिस क्वेश्चंस. ओके, ये जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं देन योर फॉर्मूला गेट ऑटोमेटिकली व्हाट? रिवाइज्ड. ओके, सो विल स्टार्ट विद डिफॉर्मेशन ऑफ बार्स. तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है डिफॉर्मेशन ऑफ बार्स के जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, डिफिकल्ट फॉर्मूलाज. यस, और भी वीडियोस आई विल मेक, बट दिस वीडियो इज अबाउट व्हाट? द फॉर्मूलाज ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बार्स. So I have brought some questions for you. Yes, and for each question I will give you 60 seconds. So I will request all the students कि वो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए. Yes, they should sit with pen and paper. Yes, and solve the questions. Okay, first I will give you 60 seconds and then I will be solving the question. Okay, so let us start with the first question. So you can see it is a tapered circular bar and the expression for the deformation of bar under axial load P is asked, and your time starts now. So 60 seconds are there. So see the question carefully and then which is the right answer, you please mark it. Yes, and I will be solving it after those 60 seconds. So the time is up. Let us see what is the right answer. Okay. Now we know that if we have a tapered bar, tapered circular bar अगर है जिसका डायमीटर D1 से D2 वेरी कर रहा है, उस डायमीटर इज वेरिंग फ्रॉम D1 to D2, D1 to D2 over a length L. Then what is the formula for deformation, axial deformation? It is 4PL by pi D1 D2 into E. बट ये जो फॉर्मूला है वो लेंथ L के लिए है, राइट? वो किसके लिए है? लेंथ L के लिए. यस, बट हमारा लेंथ कितना है यहाँ पे? देखिए 2L है, राइट? हियर आवर लेंथ इज 2L. सो इन द डिफॉर्मेशन फॉर्मूला जो कि आपका 4p इंटू L क्या था? लेंथ था. यस, तो वो फॉर्मूला जो है वो L लेंथ के लिए. यहाँ पे क्या है? इट इज गिवन 2L. सो आई विल पुट व्हाट? 2L, राइट? एंड देन पाई D1 is how much? D1 is 2D and D2 is how much? It is 4D into E. So what will happen? You see, this 4 get cancelled, these two get cancelled. So this becomes what? PL by pi D square into E. Yes. So this is the expression for what? This particular question, right? And the right answer is what? B. Okay. So let us go to the next question in which formula will revise. Let us see. So the next question is the deformation of bars under their self weight. So we have two bars here of same length but different areas, right?
So try to solve this question. I will give you 60 seconds. Okay, the time is up. So how to solve this question? Yes. See, if it was a single bar, then the expression is what? Gamma L square by 2E, right? That is for a single bar. But here we have two bars. यहाँ पे दो बार है, right? तो उसके लिए कैसे करेंगे? Very simple. मैं इसको बार नंबर 1 बोल देता हूं. Yes, and I will call this as suppose bar number 2. Now, both have length L and N and area A and 2A, right? So deformation of bar number 1 क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा गामा एन स्क्वायर बाई 2E, क्योंकि इसका लेंथ L है एंड वो तो एरिया से इंडिपेंडेंट होता है, राइट? प्लस जो तुम्हारा सेकेंड बार है उसका भी लेंथ क्या है? L है, तो उसका भी क्या हो जाएगा? गामा L स्क्वायर बाई 2E हो जाएगा, राइट? बिकॉज उसका भी जो डिफॉर्मेशन अंडर इट सेल्फ वेट है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया होता है, राइट? इंडिपेंडेंट एरिया होता है, ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? गामा ई एंड एल. तो क्या हो गया? गामा एल स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो गामा एल स्क्वायर बाई 2. लेकिन क्या होगा? द बार नंबर 2, okay, on the bar number 2 there will be what? Weight of bar number 1, right? बार नंबर 2 के ऊपर वेट ऑफ बार नंबर 1 लगेगा और ये उसका सेल्फ वेट नहीं है. अंडरस्टूड? फॉर बार नंबर 2, for bar number 2, weight number 1 is not the self weight, it's an external load, right? It is an external load. तो क्या हो जाएगा? इसकी वजह से बार नंबर 2 में डिफॉर्मेशन होगा. कितना होगा? ये weight, right? तो this is what I can say, this is what? This is the deformation of, I can say deformation of bar number 2 ड्यू टू वेट नंबर 1, राइट? वेट 1 की वजह से बार 2 में, तो यहां तो W1 होगा क्योंकि वेट 1 होगा. बाकी लेंथ किसका होगा? लेंथ 2 का होगा जो कि L है. उसके बाद एरिया किसका होगा? तुम्हारा 2 का, जो कि कितना है? 2A है, राइट? एंड E होगा. वैसे E पूरा सेम है क्योंकि मेंशन नहीं किया, तो विल एज्यूम दैट इट इज हैविंग सेम E. अब ध्यान से देखिए, वेट नंबर 1 क्या हो जाएगा? वेट नंबर 1 हो जाएगा गामा ऑफ 1. गामा ऑफ 1 वैसे क्या है? सेम है, गामा ही है, बिकॉज दोनों का गामा सेम है और ई भी सेम है, राइट? उसके बाद हमें एरिया लेंगे. किसका एरिया लेंगे? विल टेक द एरिया ऑफ द फर्स्ट बार, क्योंकि ये वेट ऑफ फर्स्ट बार है, इनटू लेंथ ऑफ फर्स्ट बार. यस, सी वेट क्या है? वेट इज योर यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, राइट? यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम. तो जब हम वॉल्यूम ले रहे हैं, देखो ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम. तो मुझे वॉल्यूम पहले बार का लेना है क्योंकि तुम्हारा वेट भी फर्स्ट बार का है. वी आर टेकिंग द वेट ऑफ द फर्स्ट बार, सो आई विल टेक द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बार, सो आई विल टेक द एरिया ऑफ फर्स्ट बार व्हिच इज ए. तो यहां देखो, यहां के एक्सप्रेशन में ए आ रहा है बिकॉज दिस इज वेट नंबर 1. तो वेट नंबर 1 मतलब फर्स्ट बार का एरिया कितना है? ए है. लेकिन जब हम यहां नीचे वाला एरिया ले रहे हैं, ये तो डिफॉर्मेशन ऑफ बार नंबर 2 है, इसलिए हमने बार नंबर 2 का एरिया लिया. दिस इज व्हाट? डिफॉर्मेशन ऑफ बार नंबर 2 ड्यू टू वेट 1. इसलिए वेट 1 में ए आया, जबकि एरिया में कितना आया? यहाँ पे तुम्हारा 2A आया, जो कि तुम्हारा बार नंबर 2 का है. तो अगर मैं इसको पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? देखिए, गामा ए एल इंटू एल डिवाइडेड बाई 2AE. अब देखिए ये ए कट गया, ये कितना आया? गामा एल स्क्वायर बाई 2E.
तो देखो यहाँ पे 3 डिफॉर्मेशंस आ गए, राइट। ये क्या हो गया, ये हो गया ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ 1, और आई कैन से दिस इज डिफॉर्मेशन ऑफ बार नंबर 1 ड्यू टू इट्स ओन सेल्फ वेट। ये क्या हो गया, दिस इज द डिफॉर्मेशन ऑफ सेकेंड बार ड्यू टू इट्स ओन सेल्फ वेट। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डिफॉर्मेशन ऑफ सेकेंड बार ड्यू टू weight of first bar, right? And therefore total is coming how much, 3 gamma l square by 2e। क्योंकि देखो गामा एल स्क्वायर बाई 2e, गामा एल स्क्वायर बाई 2e, गामा एल स्क्वायर बाई 2e, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो गया, तो 3 gamma l square by 2e। So what is the right answer here, 3 gamma l square by 2e, that is option number C। Let us go to the next question. The next question is, you can say stepped bars or series of bars। यहाँ different forces दिए हुए हैं, right? And we know that for stepped bars, what is the net deformation? It is summation of pi li divided by what, ai ei, right? तो सबका इंडिविजुअल फोर्सेस कंसिडर करना है, उनके लेंथ कंसिडर करना है, राइट, एंड देन ये करना है। यहाँ पे एक करेक्शन कर देंगे, एल ई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एल है। तो देखो तीनों बार का लेंथ तो सेम है, देखो एरिया और ई थोड़ा डिफरेंट है, राइट। देखो एरिया और ई थोड़ा डिफरेंट है, किसी का 0.5 ई है, किसी का ई है, किसी का 3 ई है, किसी का 3a है, किसी का 2a है। तो वो क्या करना है, हर बार में फोर्सेस निकालना है एंड देन उसका लेंथ लेना है, उसका एरिया लेना है, ई लेना है, समेशन लेना है, and you will get over the net deformation। So find out and your time starts now। And your time finishes। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखेंगे पहला काम क्या करना है, हमें डिफरेंट बार्स में फोर्सेस निकालना है। इसको चलो मान लेते हैं बार नंबर 1 मान लेते हैं, बार नंबर 2 मान लेते हैं, इसको बार नंबर 3 मान लेते हैं। सो इफ यू कट ए सेक्शन एंड वी सी, ये फर्स्ट बार में कितना फोर्स होगा, 3p ही होगा, राइट। इफ यू कट ए सेक्शन विल गेट 3p। in this bar we will get how much, we will get 4p, right, and it is also tension, this is also tension, right, टेंशन ही हमें दिखेगा, राइट, तो पॉजिटिव ले लिया है। then 2, if we cut a section from this side or this side, if we see the force will be how much, it will be 2p, it will be how much, it will be 2p। so we got p1 p2 p3 as how much, 3p 2p and 4p। उसको देखो सबका लेंथ तो सेम है, l ही है, राइट, एरियाज अलग अलग हैं। तो इफ आई फाइंड आउट द नेट डिफॉर्मेशन पी आई एल आई बाय ए आई ई आई, तो पहला बार को देखो, पहला बार में क्या है, फोर्स मैंने बताया था कि P1 इज इक्वल टू 3P आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ पी आई विल पुट 3P, लेंथ तो L है, डिवाइडेड बाय, व्हेन यू डू एरिया इनटू दिस, सो व्हाट इज दिस, इट इज 2A into 0.5e, तो ये क्या आ जा रहा है, देखो it is coming AE, so I write down here what, AE। now we'll go to second bar। for second bar what was the force, it was 2p, right, and it was tension, तो सब कुछ टेंशन है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2p, इसका लेंथ भी L है, इसका अगर तुम एरिया और E मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, देखो इट विल कम 3AE, राइट, तो क्या लिख देंगे हम लोग, 3AE लिख देंगे, प्लस यहां पे मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द फोर्स, हियर द फोर्स इज 4p, सो इट विल बी 4p, लेंथ तो L है ही, एंड इनका भी देखो, इनका भी 3AE आएगा, ठीक है।
देखो एरिया अलग है, ई अलग है, बट तुम्हारा जो एआई ईआई है, एरिया इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो तुम्हारा देखो यहाँ पे भी 3 AE है, यहाँ पे भी 3 AE है, तो लिख देंगे देखो 3 AE, राइट। अब ध्यान से देखेंगे इस चीज में 3 AE कॉमन है ना, तो इसको अगर हम लोग 3 AE कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा देखो 4PL 2PL, it will be 6PL, so I'll get what, I'll get 2PL by AE, right। तो अब देखेंगे ये 2PL by AE आएगा, ये वाला पूरा, and this has come how much, 3PL by AE, so total is how much, 3PL by AE plus 2PL by AE, so net is how much coming, it is coming 5PL by AE, and that is the right answer, that is the right answer। तो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड विल रिवाइज अनदर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाट, कंपाउंड बार्स और कंपोजिट बार। यहाँ पे देखिए 2 बार्स दिया हुआ है, 2 मटेरियल का बार दिया हुआ है, मटेरियल 1 जो कोर फॉर्म कर रहा है, आउटर 1 इज मटेरियल 2, राइट। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि E of material 1 is 1.6 times of E of material 2, so what I can write down, E1 is equal to 1.6 times of E2, yes। और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एरिया ऑफ मटेरियल 1 is 4.0625 टाइम्स ऑफ एरिया 2, तो एरिया का रिलेशन दिया हुआ है, E का रिलेशन दिया हुआ है, और पूरे सेक्शन में अगर P फोर्स लग रहा है तो वो P फोर्स क्या होगा, कुछ फोर्स 1 लेगा, कुछ फोर्स 2 लेगा, तो जो 2 कितना फोर्स लेगा वो पूछा है इन टर्म्स ऑफ P। यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, सो अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, द टाइम इज अप। तो आपको याद होगा कि अगर हम कंपोजिट बार में किसी भी मटेरियल, ith मटेरियल है, ith मतलब आइदर 1 2 3, यहाँ पे 2 हैं, तो कोई भी ith मटेरियल में फोर्स निकालना है तो व्हाट वी विल डू, विल टेक द टोटल फोर्स, then we'll multiply the E and I of that particular material divided by what, summation of EI AI, right। तो इस केस में अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, हम लोग 2 मटेरियल में ढूंढ रहे हैं P2, that will be equal to P, फिर हम क्या लिखेंगे, E2 A2 लिखेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, समेशन ऑफ EI मतलब क्या, E1 A1 प्लस व्हाट, E2 A2। Yes, this is how we find out the force in a particular material on a composite bar। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा देखो, this will be P, ये तो हो जाएगा E2 A2, अच्छी बात है। अब याद करो हमारा रिलेशनशिप क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा E1 is equal to 1.6 E2 and A1 is equal to 4.0625 A2। इसका मतलब क्या है, जब हम ये E1 A1 लिख रहे हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए we can write down 1.6 E2 and then what, 4.0625 A2। So if you put this value, it is coming how much, it is coming 6.5 E2 A2। So ये तुम्हारा E1 A1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6.5 E2 A2 प्लस फिर E2 A2, राइट। अब ये क्या हो जाएगा देखिए, P it will be E2 A2 and then divided by what, 7.5 E2 A2। Now you can see that E2 A2 gets cancelled and this is what, P by 7.5, or I can say what, 7.5 क्या होता है, 15 by 2, so 2 goes up,
So I get what? P2 is equal to 2P by 15. अगर P2 ये है, we know that P1 plus P2 is equal to what? Total P. So I can say P1 will be what? P minus 2P by 15. I get how much? 13P by 15. अब ये पूछा नहीं है, मैंने just extra बता दिया. It was not asked in the question, but they have asked what? P2, and we were easily able to solve remembering the formula. So right answer is what? A 2P by 15P. ये किसका? ये P1 है, right? So this is what? 2 by 15P. So we remembered the formula by solving the question, right? Let us go to the last question. For a tapered bar, and you can see it's a tapered rectangular bar. देखो वो वेरी कर रहा है, उसका width वेरी कर रहा है, thickness constant है. Deformation under an axial load P is how much? So please remember the formula and solve this, and your time starts now. So 20 seconds remaining. Remember the formula. Yes. All these formulas we have revised in our marathon session also, and many other videos we have revised it. And your time finishes. Let us see the answer for this. Now we know that अगर तुम्हारा width vary कर रहा है, if your width is varying from B1 to B2 over a length L, then we know that what is the equivalent width? The equivalent width is B2 minus B1 by what? Your ln B2 by B1. This is the equivalent width, right? तो इस केस में if we apply, what will be your equivalent width? It will be B2 minus B1, मतलब 2B minus B डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ln B2 by B1, 2B by B, right? And your B get cancelled. I get what? You see, I am getting B by ln 2. Yes, I am getting what? B by ln 2, right? Now, when we go to the deformation of bar, delta L, what was the formula? It was PL by your B equivalent into thickness. ये एरिया देगा तुम्हारा, equivalent width into thickness क्या देगा? एरिया देगा. So PL by AE. So B equivalent into T into what? E. Now here I can write down P. अब ध्यान देने वाली बात है, right? So यहाँ पे क्या है, हमने जो फॉर्मूला है पता है, within a formula we know in that the length is L, but here it is given what? 2L. So you have to be careful of these things, right? यहाँ पे लेंथ कितना है? 2L है. तो यहाँ जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो तो लेंथ L के हिसाब से है, बट यहाँ पे 2L दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? योर P इंटू 2L by TE, and what is your B equivalent? It is B by ln2. So B by ln2 will go up, right? Now see carefully. This I can write down as PL by BTE 2 ln 2. Now 2 ln 2 means what? I can take this 2 here, right? And become what? Power, right? Yes, this is the property of ln, right? So I can say this is 2 ln 2 will become what? ln 2 square. And ln 2 square is what? Nothing but ln 4. Nothing but what? Your ln 4, right? So I can say now this is the final answer. PL by BTE ln 4 is the right answer. So let us search the answer. PL by BTE ln 4. So this is the right answer. Okay. So we revised many of the important formulas of deformation of bars through questions. Yes. So this is the best way to remember the formulas. Many students asked me, okay, बहुत बार पूछते हैं सर फॉर्मूला याद नहीं होता, फॉर्मूला याद नहीं होता. तो फॉर्मूला याद करने का बेस्ट टेक्निक क्या है? आप क्वेश्चन सॉल्व करें. यस. सो आई हैव कम अप विद दिस फॉर्मूला मेमोरी टेस्ट. होप इट हैज हेल्प्ड यू.
So stay tuned for more such videos. Thank you very much.